Good morning, friends. Welcome to my 48th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding set theory. In this context, we are discussing regarding different type of laws in set theory. What are the different type of laws? There are 7 important type of laws: commutative law, idempotent law, associative law, distributive law, identity law, complement law, demography, De Morgan's law. So there are 7 important laws in case of set theory, out of which we have already discussed first 4 theory, that is commutative law we have discussed, next idempotent law we have discussed, next associative law we have discussed, next distributive law we have discussed. In today's class we will discuss 3 other important laws of set theory. Okay, before discussing 3 other important laws on set theory, let me first share my screen with you. Then we will discuss other important laws on set theory. 1 second, please. Okay, friends. So, in our last class, we have already discussed regarding these 4 laws. First, commutative law. What does commutative law tells? Commutative law tells that A union B is equal to B union A. A union B is equal to B union A. Or A intersection B is equal to B intersection A. We have already discussed. This is commutative law. Then idempotent law क्या बोलता है? A union A is equal to A. Similarly, A intersection A is equal to A. Next, associative law क्या बोलता है? A union B union C is equal to, ये यूनियन बाहर आ जाएगा, that will be A union B, यूनियन का साइन यूनियन C. A intersection B intersection C is equal to A intersection B, फिर इंटरसेक्शन का साइन फिर C. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी हैव डिस्कस्ड. यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों मिलकर आते हैं. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. सिमिलरली, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी union A intersection C. We have already discussed these 4 type of laws, and we have solved problem on the basis of these 4 type of law, and we have proved these laws actually operate. In today's class, we will discuss regarding another 3 important laws. One is identity law, another is complement law, another is very important De Morgan's law. De Morgan's law के ऊपर क्वेश्चन जनरली आता है. तो आज के क्लास में हम शुरू करेंगे पहले आइडेंटिटी लॉ में, फिर पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ, फिर पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ. ये 3 लॉ आज पढ़ेंगे. तो फर्स्ट शुरू करते हैं आइडेंटिटी लॉ. पहले लिखेंगे आइडेंटिटी लॉ. रीडिंग कीजिए, लिखिए आइडेंटिटी लॉ. What is identity law and what does it tell? आइडेंटिटी लॉ क्या है और ये क्या बोलता है उसके बारे में बात करें. फर्स्ट, आइडेंटिटी लॉ में 4 चीज हैं. 4 चीजों को एक एक करके समझेंगे. फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिटी लॉ का फर्स्ट बोलता है, पॉइंट नंबर ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए. अभी पहले समझेंगे फाई क्या है. फाई इज ए नॉल सेट. व्हाट इज ए नॉल सेट? फाई इज ए नॉल सेट. नॉल सेट क्या है? नॉल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई मेंबर्स नहीं है. उसके नॉल सेट का मेंबर क्या है? 0. तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए. एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आएगा. सपोज ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. ए है 1 2 3 4 5, कॉमा फाई इज इक्वल टू, फाई का मतलब फाई एक ऐसा सेट है जिसमें कोई मेंबर नहीं है.
इसीलिए मैं इसको ब्लैंक रखा हूँ। ब्लैंक मतलब इसमें कोई मेंबर नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है एलएचएस क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन फाइव, ए और कुछ नहीं मिले तो क्या रहेगा, ए ही रहेगा। तो एलएचएस क्या दिया हुआ है, एलएचएस इज इक्वल टू ए यूनियन फाइव। ए यूनियन फाइव कितना आता है, ए में लिखेंगे 1 2 3 4 5, यूनियन फाइव, फाइव में कितना है, फाइव में कुछ नहीं, तो ये और कुछ नहीं मिले तो क्या आ जाएगा, वैल्यू आएगा 1 2 3 4 5, दैट इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू आरएचएस। बेटा समझ में आ रहा है क्या, फर्स्ट लॉ प्रूफ हो गया। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए, तो लिखेंगे ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए, फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। आइडेंटिटी लॉ का फर्स्ट प्रॉपर्टी गया, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए। सेकेंड बी, इसमें चार चीज है। बी बोलता है ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू ए। What is intersection? Intersection means common element. What is phi? Phi is a null set. null set क्या है, null set एक ऐसा सेट है जिसका कोई मेंबर नहीं। देखते हैं ये होता है या नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एग्जाम्पल लीजिए, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड फाइव इज इक्वल टू कुछ नहीं, मेंबर कुछ नहीं है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 का इंटरसेक्शन निकालेंगे इसके साथ, कुछ नहीं के साथ। अच्छा बोलिए इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है फाइव। यहाँ पर मैं गलती लिखा हूं, ये क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5 और कुछ नहीं में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है। कोई कॉमन नहीं है तो इसमें निकलता है नॉल सेट, दैट इज इक्वल टू 5। तो दो फॉर्मूला चला गया, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है क्या, तो ये दो हो गया आइडेंटिटी लॉ का। आइडेंटिटी लॉ में चार रूल है। फर्स्ट रूल चला गया, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू 5। सी, आइडेंटिटी लॉ के बारे में हम बात करें, सी देखेंगे। सी सी का लिखिए, सी बताता है ए यूनियन डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू इज द यूनिवर्सल सेट। हम यूनिवर्सल सेट को यू लिखते हैं या ई लिखते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू लिखें। यूनिवर्सल सेट क्या है, हर सेट एक बड़ा सेट के अंदर में आता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको यहाँ पर डब्ल्यू बोला, यहाँ पर ए है, ए और डब्ल्यू मिले, क्योंकि डब्ल्यू के अंदर ए है तो ए और डब्ल्यू अगर यूनियन होगा वही डब्ल्यू ही आएगा। इसको बोलते हैं कौन सा, ए यूनियन डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या है, डब्ल्यू इज यूनिवर्सल सेट, वेयर ए इज ए एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। ए एक एलिमेंट है डब्ल्यू का, तो ए यूनियन डब्ल्यू क्या होगा, ए यूनियन डब्ल्यू का मतलब ए और डब्ल्यू मिलेंगे, ए और डब्ल्यू मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, वही ए और डब्ल्यू मिलेंगे तो डब्ल्यू आएगा, क्योंकि ए का भी आएगा डब्ल्यू का भी आएगा, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू। एग्जाम्पल देते हैं, डब्ल्यू का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल, सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, डब्ल्यू एक बड़ा सेट है जिसके अंदर ए है, डब्ल्यू इज ए यूनिवर्सल सेट। What
व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? सपोज यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 8 से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी क्या करेंगे? ए यूनियन डब्ल्यू, एलएचएस लिखेंगे। एलएचएस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए यूनियन डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब भी हम यूनियन निकालते हैं दोनों का सारा एलिमेंट लेते हैं, कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखते हैं, तो वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू आएगा तो ये 1 2 3 4 5 तो है, 1 2 3 4 5 है, प्लस 1 2 3 4 5 चला गया है, कॉमन एलिमेंट चला गया है, बाकी आएगा 6 7 8 9 10 दैट इज इक्वल टू ए यूनियन डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू। देयरफॉर दैट इज इक्वल टू आरएचएस। तो प्रूफ हो गया ए यूनियन डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ए यूनियन डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो यार प्रूफ हो यार, डब्ल्यू इज व्हिच सेट? डब्ल्यू कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। ये प्रूफ हो गया ए यूनियन डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, where W is universal set, we have already discussed. नेक्स्ट इसका और एक है D, तो D देखेंगे D में क्या लिखा हुआ है, तो D लिखिए। इसमें एक है D, D है A इंटरसेक्शन W इज इक्वल टू A। What is W? W is equal to universal set, where W is universal set। बेटा एक यूनिवर्सल सेट है जिसका नाम है W, ये W है, उसके अंदर में एक सेट है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर में सारा सेट होता है, W इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर में एक सेट है A, तो एक सेट ले लो A। अभी बोल रहा है W और A में क्या कॉमन है? W और A में ये वाला पोर्शन कॉमन है। कौन सा वाला पोर्शन? W में भी है A में भी है, तो ये वाला पोर्शन W में भी है A में भी है, तो ये हो गया W इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन W। ये पूरा था A यूनियन W था इजिकल टू W। यहाँ पर A इंटरसेक्शन W इजिकल टू कितना आ रहा है? A वाला पोर्शन ही इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल सपोज W इजिकल टू एक बड़ा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बड़ा सेट 1 to 10 नेचुरल नंबर का, उसमें से एक छोटा सेट A है, A इजिकल टू 1 2 3 4 5। अभी हमको निकालना है A इंटरसेक्शन W, तो निकालेंगे A इंटरसेक्शन W। लिखिए A इंटरसेक्शन W इजिकल टू 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनमें से कौन कॉमन है? कौन सा कॉमन है उसको लिखेंगे। कॉमन कौन सा है? इनमें से कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, तो ये दोनों में 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, इतना कॉमन है, तो यह आ जाएगा 1 2 3 4 5 दैट इज इक्वल टू कितना? 1 2 3 4 5 है A, दैट इज इक्वल टू A, दैट इज इक्वल टू RHS। ये LHS था, ये RHS प्रूव्ड हो गया। तो क्या हो गया? देयरफॉर क्या लिखेंगे? A इंटरसेक्शन W इज इक्वल टू A, प्रूव्ड। व्हाट इज W? W इज द यूनिवर्सल सेट।
हमें क्लियर? तो हमारा यहाँ पर 4 रूल है। कौन से में? आइडेंटिटी लॉ में 4 रूल है। आइडेंटिटी लॉ में 4 रूल है। कौन कौन सा 4 रूल है? एक बार और करते हैं, खत्म करेंगे। फर्स्ट, फाई के रिलेटेड 2 रूल है। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। नेक्स्ट, ए यूनियन डब्ल्यू, ए यूनियन डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ए इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू ए। सो ये हो गया हमारा कौन सा रूल? हमारा रूल चला गया आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ खत्म हो गया। एक बार आइडेंटिटी लॉ खत्म कर लिए, फिर हम नेक्स्ट लॉ में जाएंगे। नेक्स्ट लॉ को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। सपोज कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ने से पहले मैं कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझा देता हूँ। सपोज डब्ल्यू एक सेट है। कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। सपोज डब्ल्यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। उसका एक पार्ट है ए। ए कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? ए डैश को बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट होगा डब्ल्यू माइनस ए। इसका मतलब जो डब्ल्यू में होगा ए में नहीं होगा, उसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? डब्ल्यू माइनस ए। डब्ल्यू में होगा, ए में नहीं होगा। तो देखिए डब्ल्यू में होगा, ए में नहीं होगा वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला पोर्शन। ए को छोड़कर डब्ल्यू का जितना पोर्शन है सब डब्ल्यू ए कॉम्प्लीमेंट। डब्ल्यू का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट से किसी सेट को माइनस करने से जो आता है वो बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस ए। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में सारा लॉ कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड है। समझ में आ रहा है क्या? तो कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड कौन कौन सा लॉ है पहले देखेंगे। इसमें हमारा 5 लॉ है। पहला लॉ देखेंगे। फर्स्ट रूल नंबर 1 बोलते हैं ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू। ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू। देखते हैं ये क्या बोलता है। ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू। पहले समझते हैं। सपोज एक डब्ल्यू क्या है? वह डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हिच सेट? यूनिवर्सल सेट। डब्ल्यू कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू या यूनिवर्सल सेट। तो देखेंगे ए क्या है। तो व्हाट इज ए? व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू एक बड़ा सेट है जिसके अंदर ए है। तो डब्ल्यू एक बड़ा सेट है। एक बड़ा सेट लिखो डब्ल्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दिस इज डब्ल्यू। उसमें से एक छोटा सेट ए है। उसमें से एक छोटा सेट ए है मतलब उसमें से कुछ एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5। अच्छा, अगर ये ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इज मींस ए डैश। ए डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस ए। डब्ल्यू माइनस ए मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए। ए मतलब 1 2 3 4 5। क्या बचता है? बचता है सर 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10। तो हमको ए मिल गया, ए डैश मिल गया। हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू। देखेंगे एलएचएस लेंगे। एलएचएस क्या बोलता है? ए यूनियन ए डैश। तो लिखेंगे एलएचएस। लिखिए ए यूनियन ए डैश। व्हाट इज ए? ए का वैल्यू डालते हैं। ए का वैल्यू है 1 2 3 4 5। ए डैश का वैल्यू डालते हैं 6 7 8 9 10। तो ए का वैल्यू डालिए 1 2 3 4 5। यूनियन
एडियस क्या है 6 7 8 9 10 दैट इज इक्वल टू कितना आता है 1 2 3 4 5 यूनियन 6 7 8 9 10 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज इक्वल टू यहाँ पर पढ़े थे W, so that is equal to W, that is equal to RHS. Therefore क्या प्रूफ हो गया A यूनियन A डैश इज इक्वल टू W. W क्या है यूनिवर्सल सेट. प्रूफ. बेटा फर्स्ट लॉ ओवर. फर्स्ट लॉ क्या बोलता है A यूनियन A डैश इज इक्वल टू W या यूनिवर्सल सेट. समझ में आ रहा है क्या. इसको अगर सेट वेन डायग्राम बनाएंगे इजीली समझ में आ जाएगा. सपोज ये ए है. अच्छा सपोज एक ए है तो ए डैश कौन सा होगा ए डैश ए को छोड़कर डब्ल्यू में जो सब रहेगा वो ए डैश होगा. तो ये वाला पोर्शन ए है. कौन सा वाला ए है नीचे वाला ए है और ये जो लकीर वाला पोर्शन ए डैश. क्वेश्चन पूछ रहा है ए यूनियन ए डैश. ए यूनियन ए डैश. ए और ए डैश दोनों को लेंगे तो क्या आएगा ए यूनियन ए डैश मतलब दोनों को लेंगे. सपोज येलो में दोनों को लेते हैं. देखिए ए भी जाएगा ए डैश भी जाएगा तो कौन सा पोर्शन आता है पूरा पोर्शन आ गया. पूरा पोर्शन आ गया मतलब ए में भी है ए डैश में भी है. इसका मतलब ये हो गया W. ये वेन डायग्राम में हम इजीली निकाल सकते हैं. ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू व्हाट ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू W. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड लॉ इसका देखेंगे. सेकेंड लॉ रूल नंबर बी. हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ. फिर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5. वही एग्जांपल लेते हैं. ए क्या है ए डैश क्या है और इनका इंटरसेक्शन. तो एग्जांपल में तो वही एग्जांपल में लिखेंगे इन दी अबव एग्जांपल. लिखिए इन द अबव एग्जांपल ऊपर वाला एग्जांपल में ए क्या था ए डैश क्या था देखेंगे. तो ए क्या है देखेंगे ए क्या है ए है 1 2 3 4 5. ए डैश निकला है 6 7 8 9 10. ए निकला है कितना 1 2 3 4 5. ए आ गया आपका 1 2 3 4 5 ये वाला पोर्शन और ये आ गया 6 7 8 9 10 ए डैश वाला पोर्शन. तो लिखेंगे ए है 1 2 3 4 5. ए आ गया 1 2 3 4 5. ए डैश आ गया 6 7 8 9 10. नाउ ए इंटरसेक्शन ए डैश. तो LHS लिखेंगे. LHS क्या लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए डैश दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 6 7 8 9 10. इसमें से कॉमन. इसमें से कौन सा कॉमन है सर कोई कॉमन नहीं तो नील कॉमन है. नील मतलब इसमें कुछ नहीं है. तो कुछ नहीं है तो वो कौन सा सेट है सर वो 5 सेट है या नॉल सेट है. दैट इज इक्वल टू RHS. प्रूव्ड हो गया ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5. आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे भी समझ में आ जाएगा. सपोज ये यूनिवर्सल सेट है W. ये ए है. ए डैश कौन सा है ए डैश जो ए में नहीं है जो ए में नहीं है
ये येलो वाला पोर्शन ए डैश है, ए में नहीं है, यू में है, डब्ल्यू में है, तो ये ए डैश है। ए और येलो, ये व्हाइट वाला पोर्शन के अंदर में जो है और येलो वाला पोर्शन के अंदर में जो है, कॉमन क्या है सर? कुछ कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है क्या? तो 0 गया तो बी गया, तो बी का रूल 2 गया, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। इसका और 3 रूल है। सी, तो सी लिखेंगे। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड बोलता है ए यूनियन डब्ल्यू, नहीं ये तो आइडेंटिटी का, नेक्स्ट इसको मिटा देते हैं। सी में लिखिए डब्ल्यू डैश इजिकल टू 5। पहले देखेंगे डब्ल्यू डैश क्या है, 5 क्या है। डब्ल्यू डैश इजिकल टू 5। व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू एक बड़ा सेट है, समझ में आ गया? तो डब्ल्यू यूनिवर्सल सेट, सपोज एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। व्हाट इज डब्ल्यू डैश? डब्ल्यू डैश मतलब डब्ल्यू माइनस ए डैश मतलब डब्ल्यू माइनस ए, बी डैश मतलब डब्ल्यू माइनस बी, डब्ल्यू डैश मतलब डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, सी डैश मतलब डब्ल्यू माइनस सी। तो डब्ल्यू डैश होगा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू। जैसे ए डैश हम निकालते हैं डब्ल्यू माइनस ए, बी डैश निकालते हैं डब्ल्यू माइनस बी, सी डैश निकालते हैं डब्ल्यू माइनस सी। उसी तरह से डब्ल्यू डैश कैसे निकलेंगे? डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बचता है सर? कुछ बचता नहीं है। तो अगर कुछ नहीं बचता है, ये हो गया फाई सेट या नॉल सेट। तो नेक्स्ट रूल समझ में आ गया, डब्ल्यू डैश इजिकल टू व्हाट? डब्ल्यू डैश इजिकल टू 5। फोर्थ रूल पढ़ेंगे। फोर्थ रूल क्या है? 5 डैश इजिकल टू डब्ल्यू। तो देखेंगे 5 डैश आई डैश इजिकल टू डब्ल्यू। समझ में आ रहा है क्या? ये रूल है 5 डैश इजिकल टू डब्ल्यू। इसको समझाता हूँ। 5 डैश इजिकल टू डब्ल्यू क्या है? सपोज 5 डैश का मतलब क्या है? 5 डैश का मतलब ए डैश का मतलब डब्ल्यू माइनस ए, ये पढ़ाया था। बी डैश का मतलब डब्ल्यू माइनस बी, सी डैश का मतलब डब्ल्यू माइनस सी, डब्ल्यू डैश का मतलब डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू। सिमिलरली 5 डैश का मतलब डब्ल्यू माइनस 5 होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी 5 डैश इजिकल टू डब्ल्यू कैसे होता है देखते हैं। सपोज डब्ल्यू, डब्ल्यू इजिकल टू यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट है। लिखेंगे यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसमें फाई एक है। व्हाट इज फाई? फाई मतलब कोई मेंबर जिसका नहीं, नॉल सेट। अभी हम निकालेंगे 5 डैश। 5 डैश का मतलब क्या है? डब्ल्यू माइनस 5। तो निकालेंगे एल एच एस क्या दिया हुआ है? 5 डैश। निकालेंगे एल एच एस दैट इज इक्वल टू 5 डैश दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस 5। डब्ल्यू माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आता है? तो डब्ल्यू लिखेंगे डब्ल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 5। 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब सर कुछ नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस कुछ नहीं इजिकल टू कितना आता है? अच्छा, ये इसमें से कुछ नहीं गया, क्या बचता है? ये जो रहा है वो बचता है। दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो ये हो गया नेक्स्ट रूल। अभी लास्ट रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर
ई ई बोलता है ए डैश का डैश, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इजिकल टू ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए डैश का डैश इजिकल टू ए। देखते हैं ए डैश का डैश ए होता है या नहीं। पहले यू लेते हैं या डब्ल्यू लेते हैं। तो डब्ल्यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। सपोज डब्ल्यू इज ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तो हमेशा 1 से 10 लेते हैं। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से एक छोटा सेट है ए का मतलब सपोज 1 2 3 4 5 ये है। अभी ए डैश क्या होगा? ए डैश होगा तो डब्ल्यू माइनस ए। डब्ल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए मतलब क्या है? ए मतलब 1 2 3 4 5 क्या बचता है सर? बचता है 6 7 8 9 10। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है ए डैश का डैश। व्हाट इज ए डैश का डैश? ए डैश का कॉम्प्लीमेंट। ए डैश निकला था डब्ल्यू माइनस ए डैश का डैश होगा डब्ल्यू माइनस ए डैश। तो डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू तो अभी यहाँ पर निकला है 1 से 10 तक डब्ल्यू। ए डैश क्या है? ये 6 7 8 9 10 है ए डैश। तो ए डैश का डैश डब्ल्यू माइनस ए डैश दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए डैश। ए डैश कितना है? 6 7 8 9 10। बेटा कितना बचता है? जो बचता कितना है? तो ये 6 7 8 9 10 कट जाएगा तो बचेगा 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 क्या है? 1 2 3 4 5 सर ए है। ए जो है ये बचा है उतना, दैट इज इक्वल टू RHS। दैट इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू RHS। तो देखेंगे दैट इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू RHS। तो क्या प्रूफ हो गया? therefore it is proved a डैश का डैश इज इक्वल टू ए। प्रूफ। तो यहाँ पर कितना रूल है? 5 रूल है। किसका 5 रूल है? पांचों रूल को एक एक बार देखेंगे। पहला रूल क्या था? कौन सा रूल अभी पढ़ रहे हैं हम? कॉम्प्लीमेंट रूल। पहला रूल कॉम्प्लीमेंट रूल का ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू, इसको पढ़ लिए। डब्ल्यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। सेकेंड रूल ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 5। फोर्थ रूल 5 डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू। एंड फिफ्थ रूल पढ़े ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। तो दीज आर 5 इंपोर्टेंट कॉम्प्लीमेंट लॉज। अभी कॉम्प्लीमेंट हमारे 2 लॉ खत्म हो गया। एक हो गया आइडेंटिटी लॉज, अनदर इज कॉम्प्लीमेंट लॉज। अभी हम मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ पढ़ेंगे किसका? सेट थ्योरी का, जिसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आता है, जिसको बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो लिखेंगे, हेडिंग कीजिए डी मॉर्गन्स लॉ। हेडिंग कीजिए डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स का जनरली 2 लॉ है। पहले एक यूनियन वाले में, एक इंटरसेक्शन वाले में। तो पहले ए यूनियन वाला का लॉ बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट लॉ डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ। डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ बोलता है, लिखिए डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ इज ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अभी इसको प्रूफ करेंगे।
ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको प्रूव करेंगे। डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ, ये यूनियन वाला, और एक लॉ होगा इंटरसेक्शन वाला। तो ये फर्स्ट ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दिस इज द फर्स्ट लॉ। एंड व्हाट इज द सेकंड लॉ? पहले सेकंड लॉ लिख लेते हैं, पहले फर्स्ट लॉ को प्रूव करेंगे फिर सेकंड लॉ को प्रूव करेंगे। सेकंड लॉ इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। जस्ट साइन अपोज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। देखिए पहले यहाँ पर क्या था, ए यूनियन बी डैश था इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। सो दिस इज रिगार्डिंग डी मॉर्गन्स लॉ। तो पहले डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ लिखेंगे, फर्स्ट लॉ लिखेंगे और फर्स्ट लॉ को प्रूव करेंगे। डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ, क्या है फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ यहाँ पर लिखे हैं, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको प्रूव करेंगे। तो देखेंगे लेट ए इज इक्वल टू, ए का वैल्यू लिखो, लेट ए इज इक्वल टू, हाँ पहले एक यूनिवर्सल सेट ले लेंगे जिसके अंदर ए बी दोनों रहेगा। तो लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू, डब्ल्यू या यू जो भी लिख सकते हैं, लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। दैट इज इक्वल टू एक बड़ा सेट ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक बड़ा सेट है। उसमें से दो छोटे सेट हैं, एक छोटा सेट है ए है 1 2 3 4 5, उसके अंदर में और एक छोटा सेट है बी, बी को ले लो सपोज 3 4 5 6 7 8 ले लो, ठीक है। तो हमको निकालना है ए यूनियन बी डैश। तो पहले ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 यूनियन बी, बी मतलब क्या है 3 4 5 6 7 8, इन दोनों का यूनियन। जब भी हम यूनियन निकालते हैं क्या करते हैं, सेम फिगर रहेगा, दोनों का टोटल फिगर रहेगा, कॉमन वाला नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं क्या, 1 2 3 4 5, इसका फिगर पूरा चला गया, अभी इसका 3 चला गया, 4 चला गया, 5 चला गया, बाकी 6 7 8। सो ए यूनियन बी आ गया। सपोज ए डैश निकालेंगे बी डैश निकालेंगे, व्हाट इज ए डैश? ए डैश क्या है, ए डैश क्या है, ए डैश का मतलब यू, यू और यूनिवर्सल सेट डब्ल्यू माइनस ए। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए क्या है, ए है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितना बचता है, ए डैश, ए डैश 1 2 3 4 5 माइनस कर दो, बचता है सर 6 7 8 9 10, ए डैश आ गया। अच्छा ए डैश आ गया, तो अभी हम क्या करेंगे, बी डैश निकालेंगे। व्हाट इज बी डैश? बी डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस बी, डब्ल्यू माइनस बी निकालो, डब्ल्यू माइनस बी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी, बी क्या है, बी निकाल दो, बी कितना है बेटा, बी कितना है, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8, इसका क्या आता है, बी डैश का वैल्यू, बी डैश का वैल्यू आता है, अच्छा इसमें रहेगा, किसमें रहेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आता है 1 2 आएगा, फिर 3 4 5 6 7 8 तो कट जाएगा, फिर रहेगा 9 10, ठीक है।
अभी और एक चीज निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, फिर सारा लॉ को प्रूफ करेंगे। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ए और बी में कॉमन, तो लिखेंगे ए क्या है 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी क्या है, बी है 3 4 5 6 7 8, इसमें से इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वन मतलब कॉमन, इसमें से कॉमन क्या जाएगा, 1 2 तो कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 4 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये कॉमन है 3 4 5। अभी क्या किए, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले W1 लिए, फिर A निकाले B निकाले, A डैश निकाले B डैश निकाले, फिर A यूनियन B निकाले, A इंटरसेक्शन B निकाले। अभी डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट लॉ को प्रूफ करेंगे, फर्स्ट लॉ प्रूफ करेंगे, फिर सेकेंड लॉ प्रूफ करेंगे। हमारा ये सब हो गया, पहले पहले फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है देखेंगे और ये सबको डालेंगे। व्हाट इज फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ बोलता है सर ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले किसको लेंगे, एलएचएस। व्हाट इज एलएचएस? एलएचएस क्या है, एलएचएस है सर ए यूनियन बी डैश। व्हाट इज ए यूनियन बी डैश? व्हाट इज ए डैश? ए डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस ए, बी डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस बी। व्हाट इज ए यूनियन बी डैश? दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस ए यूनियन बी। सो व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू तो वैल्यू निकालेंगे, डब्ल्यू यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, डब्ल्यू है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस, ओके माइनस क्या है, बी, बी कितना है सर, बी है डब्ल्यू माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी डब्ल्यू हो गया यहाँ पर चला गया, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो कहीं पर निकाले हैं यहाँ सर, यहाँ पर निकाले, ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिखेंगे इसका वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचता है, तो देखेंगे कितना बचता है, बचता है सर कितना, तो ये बड़ा चीज है, इसमें से 8 तक चला गया, कितना बचेगा सर 9 10 बचेगा सर, 9 और 10, तो एलएचएस का वैल्यू आया 9 10। अब ये आरएचएस का वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज आरएचएस? आरएचएस क्या बोलता है, आरएचएस बोलता है सर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो व्हाट इज ए डैश पहले लिखेंगे, ए डैश तो यहाँ पर लिखे हैं, ए डैश का वैल्यू निकालते हैं, फिर बी डैश यहाँ पर निकाले हैं, ए डैश का वैल्यू ये है 6 7 8 9 10, बी डैश का वैल्यू 1 2 9 10, तो देखेंगे ए डैश, तो लिखेंगे ए डैश, लिखिए ए डैश क्या है 6 7 8 9 10, फिर इंटरसेक्शन बी डैश, सर बी डैश क्या है, सर बी डैश है 1 2 9 10, 1 2 9 10, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कौन सा कॉमन फिगर है, 6 7 तो नहीं, 8 तो नहीं सर, 9 यहाँ पर है, यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो कॉमन फिगर आ गया 9 10। अभी हमको पता चल गया, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, तो फर्स्ट रूल प्रूव्ड हो गया। तो इट इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज होता है, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। फर्स्ट हो गया, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दिस इज द फर्स्ट rule of De Morgan's law, and first rule is proved. What is the first rule? A union B का whole dash is equal to A dash intersection B dash. फर्स्ट रूल ओवर। अभी हम कौन सा रूल को प्रूफ करेंगे, सेकेंड लॉ को प्रूफ करेंगे। तो देखेंगे सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या है, तो लिखेंगे सेकेंड लॉ,
व्हाट इज सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ बोलता है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो पहले इसमें LHS लिखेंगे। LHS क्या है? LHS सार है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। सो व्हाट इज ए डैश? ए डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस ए। बी डैश क्या है? डब्ल्यू माइनस बी। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या है? डब्ल्यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर निकाले हैं ए इंटरसेक्शन बी। देखिए कितना वैल्यू आया है, तो 3 4 5 आता है। 3 4 5 हटा दो, कितना आता है? वैल्यू 3 4 5 इसमें से कट जाएगा, जो वैल्यू आएगा वो लिखेंगे। वैल्यू आएगा 1 2 3 4 5 तो कट जाएगा, तो आएगा 6 7 8 9 10। हो गया, LHS खत्म हो गया। अभी देखेंगे RHS। RHS क्या लिखा हुआ है? RHS इजिकल टू ए इंटरसेक्शन बी का डैश गया था, RHS इसमें क्या है? ए डैश यूनियन बी डैश। तो लिखेंगे ए डैश यूनियन बी डैश। अभी ए डैश का वैल्यू लिखेंगे, बी डैश का वैल्यू लिखेंगे। ए डैश क्या है? अभी हम क्वेश्चन में यहाँ पर लिखे थे सर, ए डैश था 6 7 8 9 10। ओके, दिस इज ए डैश 6 7 8 9 10। तो लिखेंगे 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10 यूनियन बी डैश। बी डैश का वैल्यू लिखे थे सर, बी डैश का वैल्यू सर यहाँ पर था, कितना है? 1 2 9 10। तो बी डैश से 1 2 9 10 यूनियन 1 2 9 10। ये दोनों को मिला देंगे तो क्या आएगा सर? ये दोनों मिल जाएंगे, कॉमन फिगर हट जाएगा। फर्स्ट में आएगा 6 7 8 9 10। इसमें से फिर 1 2 1 गया 2 गया, 9 तो ऑलरेडी चला गया, 10 तो ऑलरेडी चला गया, तो इतना आ गया। इसको अगर सजा कर लिख देंगे, आएगा 1 2 6 7 8 9 10। बेटा LHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS सेम हो गया। तो देयरफॉर व्हाट इज प्रूव्ड? ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स का दो लॉ है। एक सेकेंड लॉ क्या बोलता है? ए इंटरसेक्शन बी का डैश होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। बेटा विद दिस वी प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। समझ में आ रहा है क्या? तो डी मॉर्गन्स लॉ आज पढ़ ली। तो अभी क्या करेंगे, एक समरी बनाएंगे, आज के क्लास में क्या पढ़े हैं, फिर खत्म करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समरी। तो आज के क्लास में हम क्या पढ़े? हम आइडेंटिटी लॉ पहले पढ़े। पहले आइडेंटिटी लॉ के बारे में पढ़े। आइडेंटिटी लॉ के अंदर 3 4 लॉ पढ़े। पहला लॉ क्या पढ़े? फर्स्ट रूल, ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए। सेकेंड क्या पढ़े? ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट थर्ड रूल पढ़े, ए यूनियन डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, इज इक्वल टू डब्ल्यू। नेक्स्ट पढ़े ए इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू ए। तो आइडेंटिटी लॉ पढ़े। सेकेंड कौन सा पढ़े? सेकेंड पढ़े सर, हम सेकेंड पढ़े कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में 5 रूल पढ़े। क्या क्या 5 रूल? फर्स्ट रूल,
फर्स्ट रूल पढ़े ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू। सेकेंड रूल पढ़े ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू आई। थर्ड पढ़े डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट फोर्थ रूल पढ़े आई डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू। देन इसमें फिफ्थ रूल पढ़े ए डैश का डैश ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। फिर नेक्स्ट एंड पढ़े क्या डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े। व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ में दो लॉ है, पहला यूनियन वाला फिर इंटरसेक्शन वाला। तो फर्स्ट पढ़े डी मॉर्गन्स लॉ में ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश सिंबल बदल जाएगा इंटरसेक्शन बी डैश। नेक्स्ट सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश सिंबल बदल जाएगा इंटरसेक्शन बदलकर यूनियन हो जाएगा यूनियन बी डैश। दिस इज द समरी ऑफ टुडेस डिस्कशन। आज हम तीन तरह का लॉ पढ़े, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड डी मॉर्गन्स लॉ। समझ में आ रहा है क्या? इसके साथ हम अपना क्लास को कंप्लीट करते हैं। बट बिफोर कंप्लीटिंग माय क्लास लेट मी फर्स्ट रिपीट, if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe to my channel. My YouTube channel is Commerce Forum. Commerce Forum. Once you subscribe it, kindly press bell icon so that you will get all my latest videos as and when I upload it in YouTube. And if you really like my videos, kindly press the like button. And if you have any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is biswamishra, biswomishra, biswamishra @gmail.com. Thank you. Thank you for watching my videos. Thank you. Thank you. Thank you all. Have a nice day. Thank you.